हाँ जी क्लास, वेलकम यू ऑल इन थर्ड लेक्चर of chapter FLM, Force and Laws of Motion, class 9. So in last lecture we discussed about first law of motion, which is also known as inertia of motion. Okay, so in that we discussed about inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. So now we discussed about second law of motion, that is based on, you can say, inertia of motion. So I just recall you that inertia of motion. So what is this inertia of motion? Tendency of a body to remains in the state of motion. This is known as inertia of motion. Okay, tendency of a body to remains in the state of motion, that is known as inertia of motion. And a body remains in the state of motion until or unless any external force applied on it. We discussed this thing in our first lecture. Okay, so now I am talking about inertia of motion, which is also known as linear momentum. But the condition is the body remains in the state of motion and follow a straight line path. Then this inertia of motion is also known as linear momentum. इसको क्या कहा जा सकता है? Linear momentum. And the P is the symbol of linear momentum, and its value is m into v, mass into velocity. Okay, so you can say your linear momentum depends on its mass or depends on its velocity. More will be the mass, more will be the linear momentum. More will be the velocity, more will be the linear momentum. ठीक है ना? तो now just let me explain you the second law. मैं पहले definition बताता हूँ. Second law of motion, or it is also known as real law of motion. Okay, or it is also known as Newton's second law of motion. Okay, the meaning is, the statement is, the rate of change of linear momentum with respect to time is directly proportional to applied force, or you can say external force. This is the statement of second law of motion. ठीक है, मैं आपको पहले एग्जांपल से समझाता हूँ. सपोज बेटा एक बॉल है और मैंने उसको फर्श के ऊपर से रोल डाउन कर रखा है. ठीक है, तो if there is no friction force between the ball and the surface, if there is no friction between the ball and the air, ठीक है ना, then that particular ball continuously moving. ठीक है ना, क्योंकि the ball is having a tendency to remain in the state of motion. तो अपनी टेंडेंसी की वजह से, अपनी इच्छा की वजह से, अपने मोमेंटम की वजह से, अपने इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो बॉडी लगातार मूव करती रहेगी. पर उस बॉडी के मोमेंटम में, उस बॉडी के इनर्शिया में, इनर्शिया ऑफ मोशन में कमी आएगी, चेंज होगा या कम होगा या ज़्यादा होगा, आप ऐसा कह सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल फोर्स. अब अगर सपोज एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स ज़्यादा है, एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स ज़्यादा है, एक्सटर्नल एयर फ्रिक्शन ज़्यादा है, एक्सटर्नल सरफेस फ्रिक्शन ज़्यादा है, देन दैट बॉल विल स्लो डाउन, धीरे धीरे रुक जाएगी. ठीक है ना. और अगर एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है तो बॉल और ज़्यादा दूर तक जाएगी. दोनों ही सिचुएशन में क्या चेंज होगा? आपका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा. लीनियर मोमेंटम कम हो सकता है, टेंडेंसी कम हो सकती है, वो बॉल रुक सकती है अगर आपका रेजिस्टिव फोर्स लग रहा हो उसके ऊपर, तो भी आपका लीनियर मोमेंटम कम हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे उस बॉल की क्या कम हो जाएगी? वेलोसिटी. एयर फ्रिक्शन की वजह से
सरफेस फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे वो बॉल रुक जाएगी, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो लीनियर मोमेंटम कम हो जाएगा, टेंडेंसी कम हो जाएगी और फाइनली वो बॉल रुक जाएगी। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया था, मान लीजिए पहले 1 न्यूटन लगाया था और अब 2 न्यूटन लगा रहे हो, इस तरह से आपने उसको थ्रो किया है, ठीक है, तो अब 2 न्यूटन लगाया तो वो बॉल ज्यादा दूर तक जाएगी। तो कहने का मतलब ज्यादा दूर तक जाने का मतलब क्या है, दिस टाइम बॉल एक्वायर अ हायर वेलोसिटी, उसको ज्यादा वेलोसिटी मिल गई, एंड ड्यू टू दैट हायर वेलोसिटी इट्स लीनियर मोमेंटम विल बी हाई, और लीनियर मोमेंटम आई है तो टेंडेंसी ज्यादा होगी उसकी। तो कहने का मतलब है कि लीनियर मोमेंटम विल बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ वो चेंज हो सकता है। It just depends on the or directly proportional to the external applied force. लीनियर मोमेंटम में चेंज आ सकता है, जो कि किस पर डिपेंड करेगा, हमारा एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, समझ आई चीज। इसको रियल लॉ भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने न्यूटन के 3 लॉ पढ़ने हैं बेटा, और सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ भी प्रूव कर सकते हैं, सेकंड लॉ से हम थर्ड लॉ भी प्रूव कर सकते हैं, इसलिए इसको रियल लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, तो मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ, इसकी स्टेटमेंट बताता हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि मोमेंटम में जो चेंज आएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स होगा। ठीक है, देखो मोमेंटम में चेंज का मतलब क्या है, ये मोमेंटम दिस mv मींस फाइनल मोमेंटम, pf mu मींस इनिशियल मोमेंटम। अब आपको v और u तो पता है ना, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, v रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी एंड u रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी। दिख रहा है ना आपको फ्रेम में? हाँ जी। तो ये जो है pf माइनस pi, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, और क्या बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स की, अप्लाइड फोर्स की, एक्सटर्नल फोर्स की। तो यहाँ पर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, mv माइनस mu विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम से इसको क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर k हमने डाल दिया, ये k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है ना, ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। m मास यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम दोनों में से, तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा k की जो वैल्यू है, k की वैल्यू है आपकी 1। मैं फिर बता रहा हूँ, हमने क्या किया, स्टेटमेंट ही लिखी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये क्या बता रहा है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। रेट मीन्स टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम होता है, जनरली रेट का मीनिंग होता है पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। स्टेटमेंट लिखी, फिर यहाँ पर k हमने डाल दिया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, k की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, f इज इक्वल टू k। अब देखो चलो मैं लिखता हूँ, k की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पे, तो 1 लिख देता हूँ, 1। तो mv माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब याद करो फर्स्ट इक्वेशन जो आपने की थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की थी। ठीक है ना, यहाँ से v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो गया, तो v माइनस यू बाई टी किसके बराबर हो गया, a एक्सेलरेशन के बराबर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, f इज इक्वल टू ma। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया भाई, फॉर्मूला आ गया, f इज इक्वल टू ma। किसके अकॉर्डिंग बनाइए, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग बनाइए, हमारा रियल लॉ भी कहते हैं इसको। तो स्टेटमेंट क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ऐसा होगा, ठीक है ना, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा मोमेंटम आएगा, कम फोर्स लगाएंगे तो कम मोमेंटम आएगा। आप ऐसा भी कह सकते हो कि हमने ज्यादा स्ट्रॉन्गली ब्रेक लगा दिए तो साइकिल हमारी इमीडिएटली रुक गई, ज्यादा फोर्स लगाने की वजह से जो मोमेंटम में चेंज आया वो ज्यादा चेंज आ गया तो साइकिल रुक गई। ठीक है ना, स्लोली ब्रेक लगा रहे तो साइकिल थोड़ा दूर जाके रुकती है। ठीक है ना, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो। तो मोमेंटम चेंज का मतलब है कि आपकी वेलोसिटी हाई से लो भी हो सकती है और लो से हाई भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो फोर्स की यूनिट मैंने आपको पहले भी बताई थी, न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन होती है।
ठीक है, नोट करो यहाँ तक, कर लिया। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, ठीक है ना। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ये डाइन जो है ये फोर्स की सीजीएस यूनिट है। कौन सी यूनिट है? सीजीएस। सीजीएस का मतलब है जहाँ पर लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में, मास जो है वो ग्राम में, और टाइम जो है वो सेकंड में मेजर होता है। अगर हम इस तरह से मास, लेंथ और टाइम को मेजर करें तो फोर्स की कितनी वैल्यू बन जाएगी? 10⁵ डाइन बन जाएगी। एक और यूनिट भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैंने यहाँ से लिखा। मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन भी हो सकती है और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकती है। ठीक है, नोट कर लो इसको, इतना ही करेंगे आज। ठीक है बेटा, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, मोमेंटम में जो चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स। ठीक है बेटा, थैंक यू।